ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ ವತಿಯಿಂದ 2023ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಅಕ್ಷರನಾಥ್ ಕನೋಜಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಮಹಾಸಂಘ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ ಅವರು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹುಗ್ಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ ಸೈಯದ್ ತಲಾ ಹಾಶ್ಮಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ವೈಶಾಲಿ ನಗರ್ ಅಣದೂರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ್ಸಾಗರ್ ದಾಂಡೇಕರ್, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್, ಮಾಣಿಕ್ರಾವ್ ಗೋಡ್ಬಲಿ ವಕೀಲರು ಬೀದರ್, ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಕೀಲರು ಬೀದರ್, ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ಪ್ಯಾಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬೀದರ್, ಸುಂದರ್ ಜ್ಞಾನಿ, ಸುಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ವಿನೋದ್ ಉಪ್ಪೆ, ಎಂಪಿ ಮೂಲಭಾರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ, ಸುರೇಶ್ ಟಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೌತಮ್ ಚಿಂತಲ್ಗೆರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಹಾಶ್ಮಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ಗಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಚಲವಾದಿ, ಬಕ್ಕಪ್ಪ ದಂಡಿಡ್, ಪಂಡರಿ ವರ್ಮಾ, ವಿನೋದ್ ಪಡಸಾಲಿ, ಓಂಕಾರ ಶಿಂದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾರಾಣಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ ಬೀದರ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ, ಗಿರೆಪ್ಪ ಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ, ಧನಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಗನಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನಾ ಬೀದರ್, ಸಂಜು ಸಾಗರ್, ನಾಗೇಶ್ ರಾಜನಾಳ್, ಸಂತೋಷ್ ಅಲಿಯಂಬರ್, ಬಾಬು ಸಂಗ್ರಾಮ್, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕೈವಾರೆ, ನಸೀಮಯ್ಯ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಸವರಾಜ್ ಗುಪ್ತಾ, ಕಬೀರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ, ಗೌತಮ್ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ, ರಾಜು ಬಂಗೂರ್, ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗಾರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಖಂಡತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಭೀಮಸೇನೆ ಬೀದರ್ ಜಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದು ಸೋದರಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನೋಜ್ ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಏನದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯೂವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿದ ಕಾಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 26 ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ಕಾಪಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋದರಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಕ್ ಬಂದಾರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಭಿನಂದನಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮಾನವರಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो भारत के संविधान में बहुजन समाज के लिए कानून बनाकर आरक्षण तय करके हमको आपको आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत का संविधान आरक्षण और बहुजन की आजादी खतरे में। आज हमारा बहुजन समाज चिंतित है, दुखी है, जिसको लेकर के मैं तो 2017 से ही आंदोलित हूँ। 2014 में मैं सांसद बनकर के जब मैं लोकसभा में पहुंची, कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान में दिए गए
कानून को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, बहुजन की आजादी खत्म करना चाहती है। तो 2014 से मैंने सुना, देखा और बड़ी बड़ी बैठकों में, मैं आरएसएस की कई बैठकों में भी मैं गई। एक बैठक में मोहन भागवत जी आए थे दिल्ली के विज्ञान भवन में। उस बैठक में यह कहा गया कि भारत के संविधान आरक्षण को तो हम ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। और उस बैठक से जब मैं वापस आई तो मैं अपने गुरु जी को बताया कि आज बैठक में यह तय हुआ है। वहां पर आपस में चर्चा हो रही थी तो हमारे गुरु जी ने कहा कि अब अपने को ये मानकर चलो कि मैं बीजेपी की सांसद नहीं हूं और इस बात को सदन से लेकर के सड़क तक बहुजन समाज के लोगों को आगाह करने की जरूरत है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा की सदन से लेकर सड़क तक संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए मैंने निरंतर आवाज को उठाया है, निरंतर मैंने आवाज को बुलंद किया है। और जब मेरी आवाज को अनसुनी की गई, हमारी बातों को अनसुनी की गई, तो मैंने बीजेपी को भी लाभ डाल दिया और मैंने अपना सांसद पद भी छोड़ करके सदन से लेकर सड़क तक भारत के बहुजन समाज के लोगों को मैं जगाने का काम कर रही हूँ। जागो साथी, अगर भारत का संविधान हमारा सुरक्षित नहीं रहा, कानून सुरक्षित नहीं रहा, आरक्षण सुरक्षित नहीं रहा, तो क्या हमारा ये समाज सुरक्षित रहेगा? आज जो भी कुछ हमारे बहुजन समाज के लोगों को नौकरी का अधिकार मिला, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तमाम विभाग बनाकर नौकरी की व्यवस्था किए और उस नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था किए। उस आरक्षण के तहत हमारा बहुजन समाज, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात, लिंगायत समाज और मुस्लिम समाज के लोगों को जो नौकरियों में जो व्यवस्था मिली है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के बदौलत मिली। 22% मुस्लिम जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनको भी आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में दिया है, जो उसको उनको भी लाभ मिलता है। और पूरे भारत में जो पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर जो व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षण की व्यवस्था दिया है, आज उसके बदौलत आज हमारे एमएलसी साहब भी, पूर्व एमएलसी साहब जी और तमाम यहाँ बैठे हुए हमारे साथी जनप्रतिनिधि के रूप में या नौकरी के रूप में जो आज उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के बदौलत मिला। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तो जो विभाग बना करके जो बहुजन समाज के नौकरी की व्यवस्था थी आरक्षण के तहत, वो सारा विभाग को प्राइवेट कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी गई। ये किसके ऊपर प्रहार हो रहा है? ये उनके ऊपर प्रहार हो रहा है कि जो आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सिपाही, दरोगा, लेखपाल जो भी पढ़कर पदों पर पहुंच करके और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किए हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उनको इनके ऊपर ही ये सरकार की निगाह है कि जब ये नौकरी में थे तो इनके पास क्या था और नौकरी रिटायर होने के बाद आखिर इतनी संपत्ति ये कहां से लाए? आज हमारा बहुजन समाज अपने कमाई का आधा पैसा खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ करके आईएएस, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर, मास्टर बनेगा, बड़े पदों पर पहुंचेगा, पंच प्रधान का चुनाव लड़ेगा, तालिबा का चुनाव लड़ेगा, लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, आगे बढ़ेगा। ये सपना अगर संविधान नहीं बचा तो हमारे बहुजन समाज का सपना धरा के धरा ही रहता है। यह हमारे बहुजन समाज के लिए अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इसी कोरोना काल में पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ी जाति के आरक्षण को जब समाप्त कर दिया तो उसी आधार पर ये आरएसएस के लोगों ने अपने लोगों के
दिन से उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, इलाहाबाद में हाई कोर्ट में रीट करा दिया। हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच ने आदेश कर दिया कि पिछड़ी जाति का आरक्षण, जो निकाय चुनाव हो रहे थे, उस निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, देश भर में पिछड़ी जाति के आरक्षण को लेकर के लोग बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। आरक्षण को बचाने के लिए, आरक्षण को लागू कराने के लिए मांग कर रहे हैं। उसी बीच में पिछड़ी जातियों के साथ में अनुसूचित जाति के लोग बड़े पैमाने पर संदोल के साथ देते हैं। एक साजिश करके आपस में लड़ाने का काम बीजेपी ने किया कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे, पिछड़ी जाति के लोगों को, 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया। सावित्रीबाई फुले को यहाँ पे अभिनंदन करते हुए और मेरे पिताजी, मेरे वालिद मोहतरम जनाब सैयद जुल्फिकार हाशमी साहब, जो बिदर में एक्स-एमएलए थे, बीएसपी के पहले विधायक थे, उनके सम्मान में भारतीय भीमसेना ने एक कैलेंडर लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए आज आप लोग यहाँ पे सब आए। मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोगों से इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी वालिद मोहतरम जनाब सैयद जुल्फिकार हाशमी जब बिदर में पहली बार एमएलए बने थे तो हम बहुत छोटे थे। तो जब बैंगलोर में पहली बार काशीराम साहब आए थे तो मैं और मेरा छोटा भाई, शायद मेरी उम्र 10 साल थी और मेरे छोटे भाई की 8 साल थी। तो जब हम हमारे पिताजी को पूछे कि ये जो शख्सियत आई थी, ये कौन थे जिनको आप इतनी इज्जत दे रहे थे, क्योंकि मैं अपने जहाँ तक अपने पिताजी को जानता हूँ, वो बहुत कम लोगों की इज्जत करते थे, बहुत ही कम लोगों की इज्जत करते थे। तो जब मैं उनको पूछा ये कौन सी शख्सियत थी जिनको आप अपनी चेयर देके बाजू में बैठ गए थे, तो उन्होंने हमको बताया था ये एक महापुरुष है। तो शायद जब हम उनको नहीं समझ पाए, जब बड़े हुए, जब मालूम हुआ कि काशीराम साहब कौन थे, तो हमारे निगाहों में उनकी इज्जत और भी बढ़ी। उससे ज्यादा इज्जत हमारे वालिद की बढ़ी, क्योंकि उन्होंने उनको इज्जत दी थी। तो आज आप लोग यहाँ पे जो सब जमा हुए हैं, उनको मैं अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके सामने और एक इज्जतदार शख्सियत बैठी है, आप उनकी इज्जत बरकरार रखें। वो आज आप लोगों के सामने एक मैसेज के साथ आई हैं। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट को दिया, ठुकरा दिया, कुर्बान कर दिया है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए। आज की जो राजनीति है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है तो कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना चाहता है। उसके लिए यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग, उनमें से मैं भी हूँ, एक जिद्दोजहद करते हैं, एक कोशिश करते हैं, मगर वो सीट पाने के बाद भी जिन्होंने कुर्बान आप लोगों के लिए किया है, आप लोग उनकी इज्जत करना है। जब भी वो आवाज दिए, हम वादा करते हैं मैडम, हम आपसे दीदी वादा करते हैं, आप जब भी आवाज दीजिए, समाज के लिए आवाज दीजिए, हम हाशमी परिवार की तरफ से, मैं उनका बेटा और उनका सारा परिवार आपके हमेशा साथ है। चाहे वो कानूनी कार्रवाई हो, चाहे वो रोड पे आके लड़ने की जंग हो, हम हमेशा आंदोलन के साथ, समाज के साथ रहने के लिए, समाज के लिए लड़ने के लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। मैं बस इतनी सी बात करते हुए आप लोगों का यहाँ पे आए, जब से मैं एक बात सुन रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी आए लोग हैं उन सबको भारतीय भीमसेना के कार्यकर्ता के नाम से बुलाया जा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोग वॉरियर्स हैं साहब, हम लड़ाई करने वाले हैं और हम लड़ते रहेंगे। कार्यकर्ता तो हमारा काम है, वो हम करते रहेंगे। इतनी सी बात करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। एक एमपी है, हम यहाँ बैठे हैं कितने, इतने से लोग आते हैं, इतना लोग आते हैं, उतने लोग आते हैं बोल के सोचे नहीं है। ये संविधान का काम के वास्ते कितना 3000 किलोमीटर से हमारा बीच में आए हैं। आज मैं देख रहा हूँ 2012 से मैं दीदी को देख रहा हूँ, 2012 से मैं दीदी को देख रहा हूँ। उनको असेंबली में भाषण करते हुए देखे, यूपी के असेंबली में भाषण करते हुए देखे, पार्लियामेंट में भाषण करते हुए देखे, पुलिसों से लड़ते हुए देखे, जातिवादियों से लड़ते हुए देखे। आज ये हमारी सबकी सौभाग्य है, हम हमारे बीच में आज हम दीदी को देख रहे हैं।
दोस्तों, इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर खोया है, सबसे ज्यादा किसी ने खोया है तो हम बुद्धिस्ट लोगों ने खोया है। हमको उस विरासत को फिर से लाना है। उस विरासत को लाने तक हमको चैन से बैठने का नहीं है। ये भारत नहीं था, ये प्रबुद्ध भारत था। जब तक हम प्रबुद्ध भारत फिर से नहीं बना सकते हैं, तब तक हम दीदी को वादा करते हैं, हमारा फीस हम जमीन को नहीं लगाएंगे, उतना लड़ेंगे जो सम्राट अशोक 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे, वो आज उन सारे विहारों के ऊपर कब्जा है जातिवादियों का। इसलिए मुझे इजाजत नहीं है ज्यादा बोलने की, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। आज हमारा दीदी जो सौगंध खाकर एमपी सीट को ठुकरा कर इस समाज को बचाने के लिए निकले हैं, आप सबको मैं कहता हूँ, तहे दिल से कह रहा हूँ, जब बहन लड़ता है तो भाई घर में बैठा तो ऐसे भाइयों को धिक्कार है। मैं कहता हूँ, उनसे पहले हम लड़ना चाहिए, उनसे पहले हम रहना चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पर नमन करते हुए, उन्होंने एक विरासत हमको देकर दिया है। मैं ये कारवां, ये रथ यहाँ तक मैं खींच कर लाया हूँ, इसे पीछे जाने नहीं देना बोल के दिए हैं। कितने जातिवादियों ने एक बार कहा था, डॉक्टर बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट की दरवाजा तो क्या खिड़की भी बंद है बोले थे। उस वक्त भी हमारी मुस्लिम समाज ने बंगाल से जिताकर बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट में भेजा था। उसी वजह से आज संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब बना है। आज बाबा साहब की बेटी बनकर सारी दुनिया में लड़ने के लिए निकले हैं हमारी सावित्रीबाई फुले जी। देखो, नाम रख लेने के लिए भी ताकत चाहिए। हम उस सावित्रीबाई फुले को नहीं देखे हैं, आज सावित्रीबाई फुले का नाम धारण लेकर उन्हीं की गांव में आगे बढ़ रहे हैं। दीदी, हम सब आज सौगंध खाते हैं, जब भी आप पुकार देंगे, हम कर्नाटक से सारे रेल भरकर आपकी आवाज के साथ हम आएंगे, आपकी कदमों में कदम मिलाकर चलेंगे। इतना वादा करते हुए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ज्यादा बोला, मेरे को 2 मिनट के लिए वक्त दिए थे, तो आप सबको मैं क्षमा चाहते हुए मेरे शब्दों को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और दीदी सावित्रीबाई फुले और हमारे बुजुर्ग इस मंच पे आए हुए सभी गेस्ट और मेरे साथी सो आप सबका वक्त ज्यादा लिए, उसलिए आप उनको भी दीदी उनको भी बसों कल्याण जाना है, ज्यादा टाइम नहीं देते हुए आप सबको इस भारतीय भीम सेना का और से सभी को धन्यवाद कहते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। जय भीम। देवरनाथ कनौजिया, यूपी से हूँ। संविधान आरक्षण बचाओ बहुजन महासंघ जो बना है उसका संस्थापक हूँ, और ये संघ बना करके पूरे देश में, देश के हर प्रदेशों में बहुजन समाज को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। चूँकि सारे प्रदेश के और सारे देश के बहुसंख्यक समाज ये चिंतित है कि हमारा भारत का संविधान खतरे में, भाजपा की सरकार में हमारा भारत का संविधान लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए बहुजन समाज को जगाने से क्या बच पाएगा सर? बहुजन समाज की पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है, ये 100 में 90% बहुजन समाज है। इसलिए हाँ, बहुजन समाज जगाना बहुत ज़रूरी है, और बहुजन समाज के ही वजह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। जब तक बहुजन समाज अपने संविधान के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, लोकतंत्र पर जागरूक नहीं होगा, तब तक जो है हम संविधान नहीं बचाएंगे। इसलिए बहुजन समाज को जगाना जरूरी हम समझते हैं। इसलिए हर प्रदेशों में जाकर के बहुजन समाज को हम लोग एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। आपकी लेना पड़ेगा जी, मेजॉरिटी में है, कोई भी सरकार आपसे ही बनती है, कोई भी सरकार आपसे ही, मतलब बहुजन समाज से सरकार बनती है, ऐसा कहते हैं। बहुजन समाज से ही सरकार बनती है, ये तो आप भी जानते हो।
ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग ये सरकार बनाने का काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग सरकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुस्लिम को छोड़ करके बाकी लोग उसकी सरकार बनाने का थोड़ा बहुत वोट दे करके काम करते हैं। अब उनको समझना होगा कि हमारा संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो जिसको आरक्षण से उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो ये समझ में जब बात आ जाएगी कि आरक्षण हमारा खतरे में है, तो पुनः ये उनको छोड़ करके और बहुजन समाज का जो महासंघ बना है इस मंच पर आएंगे और मंच पर आकर के उनको रोकने का काम करेंगे। जितने भी संगठन हैं जो होराटक कर रहे हैं